Today you are revising lesson 4 of agriculture, right? And in revision, you will study about all the crops or as possible as crops, and also about the Bhudan Gramdan. So Vinoba Bhave started Bhudan and Gramdan Andolan. Okay. Who was the first person to donate the land? Sri Ramchandra Reddy. Sri Ramchandra Reddy. 80 acres of land. मैम 1 एकड़ जमीन होता है मैम 1337.8 मीटर स्क्वायर. फिर से इसको चेक करना. 4046 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है ना? ओके मैम. मैं उसको निकाल रहा था. हाँ, तो ये है एकर्स ऑफ लैंड. तो कई तरह से लैंड का मेजरमेंट करते हैं, है ना? जैसे बीघा होता है, कट्ठा होता है, धूर होता है. हाँ, स्टैंडर्ड जो है वो है हेक्टेयर ऑफ लैंड एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है ना? What is land ceiling? Some of the landlords have excess of land with them, and the government enacted a policy to acquire the extra land. Yesterday, one student was asking about the limitation of the land. After what area of land you can say that it is extra, and it can be taken by the government. So it varies from region to region, from state to state. It varies from 5 acres to 15 acres. Okay. In some states like West Bengal, it is 12 acres of land. This is the limit. And so it varies from 5 acres to 15 acres of land. It depends on the rule of the state and also on the quality of the land. Okay. So let us come to the question answers. And yesterday I have told you that there are some topics in this lesson which you don't have to study. Okay, you don't have to study the food security because it is already explained in economics, and so you have to leave this topic. On which page number is food security? You don't have to study this topic also. Impact of globalization on agriculture. You don't have to study this, right? Okay, ma'am. Food security on page number 44. Cross that topic also. You don't have to study food security. Okay, ma'am. Let's have a question answer. It is not in your syllabus. Okay. There is something is written in this box. Let us study this before doing the question answers. Change in cropping pattern, for examples, from cereal to high value crops will mean that India will have to import food. What is happening these days? That farmers are turning their attention towards the cultivation of high value crops, means non-food crop. Some of the farmers are not doing the agriculture of cereals. They are doing the agriculture of some commercial crops for more benefit. Then what will happen to India? Will India have to import food grains from other countries? So there should be a balance in the cultivation of food crops and in the cultivation of other commercial crops or non-food crops. In a country like India, rice and wheat and pulses and other cereal crops like millets all are very essential. So there should be a balance in the cultivation of the variety of crops. During 1960s, this would have been seen as a disaster. But if India imports cereals while importing high-value commodities, it will be following successful economies like
Italy, Israel, and Chile. What is written here? But if India imports cereal while exporting high-value commodities, it will be following successful economies like Italy, Israel, and Chile. So we have to compare what benefits are we getting. Suppose if we are getting more benefit by exporting the non-food crops and by importing food crops, okay, suppose the investment in importing food crop is less and the earning by exporting the non-food crops to India is more, then we should follow that. So all these are a matter of just understanding, desire, etc. to what is the need of the country. है ना, जैसे कुछ कंट्रीज के यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, इटली, इजराइल, चिली, है ना, वो लोग क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स को इंपोर्ट कर लेते हैं और बाकी जो ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से उनको फूड इंपोर्ट में कम खर्च लगता है और अपने यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये सारी बातें ना, वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको देखने की जरूरत है कि इंडिया जैसे हाई पॉपुलेटेड कंट्री में क्या जरूरत है। इंडिया को तो पहले सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए फूड में, और फूड सिक्योरिटी इंडिया गेन भी कर चुका है और इस फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। फूड सिक्योरिटी क्या है कि यहाँ की जितनी आबादी है उसके लिए सफिशिएंट फूड हो और फिर हमारे बफर स्टॉक में भी फूड हो। बफर स्टॉक मतलब हमारे स्टोरेज में भी इतना फूड हो कि कभी कोई डिजास्टर आ जाए, कोई स्कैर्सिटी हो जाए फूड की, तो हमारे बफर स्टॉक से काम चल जाए, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ फूड सिक्योरिटी को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, है ना। हम ब्लाइंडली दूसरे कंट्री को फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ देखते हो ना, जैसे ही प्राइस राइज हो जाता है पोटैटो का या अनियन का तो क्या हालत हो जाती है। अभी भी प्राइस राइज हुआ है एडिबल ऑयल का, तो इसलिए हमें पहले अपने फूड क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। These countries export farm products, fruits, olives, especially seeds and wine, है ना। ये सारे कंट्रीज जैसे इटली, इजराइल, चिली हैं, इनके इंपोर्ट आइटम्स में क्या क्या है, चाहे तो फ्रूट्स, ऑलिव्स हैं, सीड्स हैं तरह तरह के, यार वाइन, ये सब है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इंपोर्ट सीरियल, तो ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट करते हैं और जो चीपर प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क? डिबेट द इशू, ठीक है ना। ये इशू कैसा है, डिबेटेबल इशू है कि इस पे हमें बहुत अच्छे से पहले डिस्कशन करना चाहिए कि हाँ हमारे जैसे कंट्री को, इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है ना कि सबसे पहले तो यहाँ सेल्फ डिपेंडेंसी फूड में होना चाहिए। नहीं तो जहां भी फूड की स्कैर्सिटी थोड़ी भी होगी तो और भी ब्लैक मार्केटिंग ये सब बढ़ जाएगा, होर्डिंग बढ़ जाएगा। Now read this question, multiple choice question. Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area is known as plantation agriculture? Right answer is plantation agriculture. तो ठीक है, अब यहाँ तुम plantation agriculture के कुछ और characteristic feature बताओ। दो characteristic तो यहाँ लिखा हुआ है, एक क्या characteristic? Ma'am, tea plantation. It is a single crop farming and it is grown on a large area which is known as farm estate. तो दो पॉइंट तो तुमको यही क्वेश्चन में ही है। अब और कुछ एग्जांपल बताओ कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के और भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। It requires well developed communication and transport system. हाँ, why it requires well developed transport and communication system? Because Ma'am, to connect the farm estates to the cities and markets, etc. Three points are to be connected: the farmland, the manufacturing center, and then the market. These are the three important areas which are to be connected with speedy movement of the vehicles for transportation. Raw material is transported to the market, and raw material is transported to the industries, and from industries the manufactured items are transported to the market.
कुछ और भी बताओ। बहुत सारे हमने लिखवाए थे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मैम it is labor assistance. It provide a more. Ma'am, it has an interface of agriculture and industry, which is capital intensive, and production is also very high, like industries. Very good. हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इट हैज दिस एग्रीकल्चर हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना, मतलब एक इंडस्ट्री से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज साइज ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। प्रोडक्शन इज ऑल्सो ऑन लार्ज स्केल, है ना। जैसे फैक्ट्री को चलाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, एक गुड मैनेजरियल एबिलिटी की जरूरत होती है, वो सब यहाँ भी चाहिए, ठीक है ना। एंड द रॉ मटेरियल आर द प्रोडक्शन इज द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जितने भी यहाँ जो प्रोड्यूस करते हैं हम, वो सब के सब क्या है? ऑल आर द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे वर्कर्स कैसे चाहिए? Large number of workers are required, skilled workers are required, so the laborers are unskilled workers great. Skilled and unskilled also. So and the women workers are suitable for. Sorry? Ma'am, women workers are suitable for plugging tea leaves. Okay. And what are the example of plantation agriculture? At least give 5 names. Ma'am, tea, coffee, rubber, sugarcane, coconut. Okay. And some more, if you are asked to give some more examples. Banana. Bamboos. Bamboos की भी agriculture होती है ना, और वो भी plantation के अंदर ही आता है। कोकोनट आप बोल ही दिए, रबर, टी, कॉफी, बनाना, स्पाइसेस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और इसमें क्या होता है? ये सिंगल क्रॉप फार्मिंग है। देयर इज नो टोटल हार्वेस्टिंग ऑफ द फील्ड, द सेम प्लांट रिमेन इन द फील्ड फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, so all these are the characteristic feature of plantation agriculture. We know which one of the following is a rabi crop? Rice, gram, millets, cotton. Gram. Besides gram, name some other rabi crops. Wheat, mustard, wheat, barley, peas, mustard, etc. Can you name some rabi pulses? Pulses, arhar. No. You turn the page of cropping seasons, right? Or you turn the page of pulses and just say the answer. पल्सेस में तुमको 2 लिस्ट लिखाया गया था, एक रबी पल्सेस और एक खरीफ पल्सेस। तो पल्सेस में तुम देखो और बताओ। रबी पल्सेस आर मैम राजमा, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। हाँ देखो, रबी पल्सेस में आप जितने लोग नहीं लिखे हैं ना, अभी लिखो। रबी क्रॉप्स, रबी पल्सेस आर ग्राम। ग्राम मतलब चना हो गया, और पी और मसूर। ग्राम, पी एंड मसूर, ये 3 लिखो। और खरीफ में तुम लिखो तुर, उड़द, मूंग। और अरहर तो एक ऐसा कौन सा बोलो? मैम अरहर। हाँ, उसी को तुर कहते हैं, TUR, तुर। तुर, उड़द एंड मूंग, ये तीनों जो है ना वो किस में आते हैं? खरीफ क्रॉप में। और बाजरा, ग्राम, पी एंड मसूर। बाजरा यहाँ नहीं बोल सकते, बाजरा तो सीरियल क्रॉप है, मिलेट्स है ना। अभी हम लोग पल्सेस की बात कर रहे हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप? पल्सेस, ज्वार, मिलेट्स, सेसमन। लेग्यूमिनस कौन सा है? बोलो। मैम पल्सेस। Pulses. What is the meaning of leguminous plant?
which contain a nitrogenous bacteria. हाँ, which fixes nitrogen content in the soil, and in this manner it increases the fertility of the soil. Leguminous crops helps in nitrogen fixation in the soil, and the soil become very fertile. So in crop rotation, pulses are grown. क्रॉप रोटेशन समझते हो ना, कि अगर हम लगातार कई सालों तक राइस व्हीट ये सब ग्रो करते रहे तो हो सकता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बीच में क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन के दौरान कि वो पल्सेस लगा देते हैं। पल्सेस लगा देने से सॉइल की फर्टिलिटी ठीक हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। Name one important beverage crop and specify the geographical conditions required for it. इसमें तुम टी ही लिखना इसमें, क्योंकि टी की जो टेम्परेचर ranging from 21 degrees Celsius to 29 degrees Celsius. Tea grows well in region which receive rainfall in between 150 to 200 centimeters. The soil should be well drained for tea crops. नहीं, तुम ना बहुत अच्छे से नहीं लिखते हो ये हरे राम। मुझे क्लास में जैसे हमने गाइड किया था लिखने के लिए टी का ज्योग्राफिकल कंडीशन, और अच्छे से कौन लिखा है? अनुप्रिया बोलो। अर्पणा, हैव यू रिटन? जिसने नोट्स को बहुत अच्छी से तैयार किया है ना वो ये करो, रीडिंग करो। आदित्य, आदित्य आर्यमान, हाँ अधिश्री, कोई भी बच्चा करो तो जो तैयार है। Ma'am, tea is an example of plantation agriculture. Whose geographical conditions are as follows. Temperature. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates. 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius is the required temperature. Tea bushes require frost-free climate. Rainfall. Frequent showers evenly distributed over the years ensure continuous growth of tender leaves. Rainfall requirement is above 150 to 300 centimeter. हाँ हरे राम, you correct your answer. तुमने ये सब रेंज थोड़ा अलग लिख दिया है ना? चल आगे पढ़ो। Soil. Tea grows well in deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Labor. Tea is a labor-intensive industry. It requires abundant, cheap and skilled laborers. Women workers are more suitable to pluck the tender leaves. देखो ये कितना सिस्टमेटिकली आंसर लिखा हुआ है तुम्हारा। उत्कर्ष, उत्कर्ष ने अच्छे से लिखा है। तो ये ना तुम लोग ना क्लास में सिंसियरली आंसर को बढ़िया से लिखा करो। जब हम लोग डिक्टेट करा रहे हैं तो तुमको लिखने में क्या दिक्कत है ना? तो उत्कर्ष ने आंसर पढ़ा। तो तुम लोग बताओ, अधिश्री, अभिषेक, आदित्य आर्यमान, अंशिका, तुम लोग लिखे हो कि नहीं? मान्या, आंसर लिखा गया है? मुकुल राज, पिया भारती, पिया भारती बहुत मेहनत करो, समझे ना, क्लास 10th के लिए। बच्चे जवाब दो, तो तुम्हारा नोट्स तैयार है कि नहीं टी प्लांटेशन के ऊपर? हैव यू प्रिपेयर्ड नोट्स ऑन टी? यस मैम। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि टी का ज्योग्राफिकल कंडीशन और उसके मेजर एरियाज दोनों याद रखना, ठीक है? श्रेया आनंद, नेम द मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज। Ma'am, I make the notes, but my notes were. No, you don't follow the class. श्रेया आनंद। Yes ma'am, मैं मेरा notes लिखा हुआ है, मैं पढ़ सकता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, एक बार पढ़ लो। Ma'am, tea is a cultivation, is an example of plantation agriculture. It is important beverage crop introducing in India internally by the British. It requires 20 to 30 degrees Celsius temperature. Air is moist and the rainfall frequent shower. Of distribution over. थोड़ा सेंटेंस पे स्पेलिंग पे ध्यान दो। क्या होता है ना कि तुम्हारा सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तुम बहुत केयरलेसली लिख देते हो। तो उसको सही करने के लिए ना तो किताब को भी फॉलो करो तो तुम्हारा सेंटेंस सही हो जाएगा, है ना? आगे पढ़ो।
Ma'am, it requires 100 आगे पढ़ो। and for 150 to 300 centimeters. Of rainfall. Rainfall कैसा होना चाहिए? In the form of light shower and well distributed rainfall. ठीक है ना? लाइट शावर का मतलब समझ गए कि हल्की हल्की बारिश होनी चाहिए, बहुत तेज मूसलाधार पानी इसको लॉस पहुंचाता है टी प्लांट को, इसलिए लाइट शावर। Intensive agriculture. It requires skilled and unskilled labor both in cheap rates. एक बार और बताओ, सॉइल कैसा चाहिए टी के लिए? मैम जूट के लिए। टी के लिए मैम इसके लिए मॉइस्ट सॉइल चाहिए। नहीं, आपका इनकम्प्लीट है। फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। हाँ, ऐसे लिखो, फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऐड करो। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ना कि सॉइल में उसके लीव्स गिरते हैं और मिलते जाते हैं और इस तरह से ह्यूमस कंटेंट उसका बढ़ता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ा रहता है, और ये जरूरी है उसके सॉइल के लिए, टी के लिए। ठीक है ना? तो सॉइल के बारे में पूरी बात लिखो। वेल ड्रेन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेनफॉल आता है ना, हाँ, उसका वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए उसके रूट्स में। ओके, चलो अब क्या करना है बताओ। ऋषित रंजन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। स्टेपल क्रॉप में ना दो है तुम्हारे, एक राइस है एक वीट है, ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम टू स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, तो यू विल राइट राइस एंड वीट। अब यहाँ तुम राइस के बारे में लिख सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया इज राइस एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड आर वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न प्लेन। पहले फिजिकल रीजन के नाम लिखो, द होल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ओके, द कोस्टल प्लेन्स, और इसके बाद तुम फिर स्टेट्स के नाम भी मेंशन करो। तो बताओ तो स्टेट्स में क्या क्या लिखे हो? मैम वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला एक्सेट्रा, तमिलनाडु। अभी कौन बोल रहा था? प्रणव, एक और बच्चा कौन बोल रहा था? मैम सुधांशु इज स्पीकिंग। सुधांशु बोलो, फिर से बोलो। मेजर एरियाज ऑफ राइस। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। हाँ रुको, नहीं बोलो बोलो, किताब देखो। मैम वेस्ट बंगाल। हाँ मैम राइस। मैम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, बिहार। हाँ ठीक है मैम इट रिक्वायर्ड टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस एंड रेनफॉल 100 डिग्री सेल्सियस। हरे राम वेट करो, तो मुझसे अभी नहीं पूछा गया है। अभी पहले रीजन्स की बात हो रही है कि राइस कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो करते हैं, है ना? तो ये सारा लिखना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब लिखेंगे उसमें, ठीक है ना? और पंजाब, हरियाणा ऑल्सो आर रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ऑफ राइस, उसको भी ऐड कर लेंगे, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। Enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers। देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे तुमको अलग से आंसर लिखाए हैं, लिखाया गया है ना? हाँ यस मैम। तो उसको एकदम, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलरली सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लिखना है, इसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं लिखना है, समझ गए ना? तो उत्कर्ष एक बार रीडिंग करो तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फटाफट। मैम आई कैन। मैम द यूनियन एंड स्टेट, दूसरे को भी चांस दो।
The union and state governments have implemented many reforms for increasing the production and betterment for the condition of farmers. Following are the institutional reforms. Abolition of zamindari system, collectivization and consolidation of land holdings, cooperative system of agriculture. यहाँ पे उत्कर्ष एक है एबॉलिशन, ABOLITION, एबॉलिशन मतलब समाप्त कर देना, इरेडिकेट कर देना। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, क्यों? क्योंकि जमींदार जो होते थे ना, वो बहुत फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, क्योंकि वो एक अंग्रेज के जमाने से ही थे वो जमींदार, तो फार्मर से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करना और ब्रिटिशर्स को देना, ये सब उनका काम होता था। ठीक है, तो ये फार्मर्स के पॉवर्टी को बिना किसी चीज को देखे हुए बस उनसे टैक्स वसूला करते थे, है ना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो नहीं हो। और फिर क्या है तुम्हारा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया में क्या है, लॉ ऑफ हेरिडिटी के चलते वो जमीन जो है, फादर का जमीन उसके सन्स में बढ़ जाता है, फिर उसके सन्स में फिर अगले कुछ सालों के बाद बढ़ जाएगा। जमीन का शॉर्टेज होते, लैंड ना छोटा छोटा होता चला जाता है, द प्लॉट ऑफ द लैंड बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इसके लिए लैंड कंसोलिडेशन करना जरूरी था, मतलब इधर उधर बिखरे हुए छोटे छोटे प्लॉट को के बदले एक फार्मर को एक जगह दे दिए और दूसरे फार्मर को दूसरे जगह दे दिए। टोटल वैल्यू लैंड का एरिया का उतना ही रहेगा, लेकिन उसको कंसोलिडेट कर दिया, मतलब एक तरफ ज्वाइन कर दिए। तो ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। और लैंड सीलिंग का भी हम लोग डिस्कस किए ही थे, ये सारे लैंड रिफॉर्म में आ गया। आगे पढ़ो उत्कर्ष। Cooperative system of agriculture. Provisions for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, and diseases, etc. Establishment of Grameen Bank, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates. Kisan Credit Card, personal accident insurance scheme for the benefit of farmers are also launched. Weather bulletins and agriculture programs were introduced on the radio and televisions. The government also announces minimum support price to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. ठीक है ना अपर्णा, तुमने वो लिखा है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स? यस मैम। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एक बार रीडिंग कर दो। आज का हम लोग का रिवीजन क्लास ही है और ये क्लास अब खत्म हो रहा है। चलो रीडिंग करो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। The technological reform in agriculture. First, green revolution and white revolution is operated. Green revolution and white revolution was introduced. Green revolution means increasing the production of agricultural crops, and white revolution means increasing the production of milk. आगे पढ़ो। ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिटेल बताओ। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ? मैम आई कैन। हाँ, अर्पणा लिखे नहीं हो? मान्या add to the answer. हाँ तो सुनो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में तुम सारे पॉइंट्स डालोगे। एक क्या है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स, and HYV seeds requires lot of irrigation facility. So the modern irrigation facility was also provided during the Green Revolution for the better production from HYV seeds. HYV seeds require lot of water, and this water can be only provided by the modern irrigation facility. And modern irrigation facility means canal irrigation, drip irrigation, sprinklers, है ना, ये सब नए तरीके जो है इरिगेशन के, वो सबको हम मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा कैनाल इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसका एक पॉइंट बना लो कि फॉर बेटर प्रोडक्शन थ्रू द HYV सीड्स chemical fertilizers are used, and besides this weedicide, pesticide, insecticides are also used for better production.
ठीक है। और एक पॉइंट में आप ये लिख देंगे कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर लाइक ट्रैक्टर्स, पंपिंग सेट्स, थ्रेशर, कंबाइन, टिलर्स, मॉडर्न वेयर हाउस फैसिलिटी, वेयर हाउस मतलब स्टोरिंग फैसिलिटी, तो मॉडर्न वेयर हाउसिंग फैसिलिटी विथ एयर कंडीशनर एक्सेट्रा, और ये सारे चीज भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन सबका रेफरेंस दे दिए, तो यही क्या हो गया तुम्हारा मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सब लोग इसको लिखना, नहीं लिखे हो लग रहा है सारे बच्चे। और बताओ, ये देखो, the land under cultivation has got reduced day by day. Can you imagine its consequences? तो ये सबसे पहले ये बताओ कि land under cultivation has reduced why? है ना, due to increasing population we require more and more land for residential area. We are constructing more and more roadways, railways, bridges, etc. Factories, hospitals, all are being constructed, and in this manner the area under cultivation is encroached, है ना। कल्टीवेशन का जो एरिया है वो दिनों दिन थोड़ा कम होता चला जा रहा है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा बताओ। आर्यन कुमार बोलिए, अपने वर्ड्स में बोलो। Food storage for the rising population. Ma'am, food prices will increase and we have to import it